Namaste and a very warm welcome to all. We are back again with the second episode in our quest to spread awareness and promote better management of women's health. Last week, we launched the website of CSR initiative of Jagsonpal Pharma, the women's health website called mysakhi.in. You can log into mysakhi.in to explore more. As a part of this initiative, we shall be having webinars every Friday focused on menopause and the related concerns. Today, we have with us an internationally renowned menopause expert, Professor Dr. Sunila Khandelwal from Jaipur. We extend a warm welcome to you, ma'am. Dr. Sunila Khandelwal is a senior consultant gynecologist and menopause specialist and director Midlife Women Healthcare and Menopause Center, Fortis Escorts Hospital, Jaipur. She has been medical superintendent, professor and HOD of Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology and at SMS Medical College, Jaipur. Her passion to work globally for midlife women health is seen as she has been with Indian Menopause Society, the past president of Indian Menopause Society, and also has been executive board member in the International Menopause Society. Her mission is converting miserable lives into meaningful ones. We thank you, Dr. Sunila Khandelwal, as you help us all clear the doubts about this life stage of women's life, that is menopause. Over to you now, Dr. Sunila ma'am. Thank you, Dr. Deepika. Firstly, I congratulate Jagsonpal and Dr. Deepika, you too and your team for such a wonderful initiative, much needed initiative in this area of menopausal medicine and of course caring for mature women healthcare, which is, as you rightly said, it's my passion. So मैं आप सभी महिलाएं जो आज इस वेबिनार से मेरे साथ जुड़ी हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूं और आइए हम हमारे इस सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं और क्या क्या उससे जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं, क्या क्या उससे जुड़ी आपकी शंकाएं हैं। तो आइए मैं डॉक्टर सुनीला आपको कुछ ऐसी समाधान भी बताऊंगी और साथ में आपकी भ्रांतियों का निवारण भी करूंगी। So women life is like a rose, spread fragrance all over around, and herself retains the thorn. While the reproductive cycle ends, the femininity starts fading. It leaves a piercing feeling. Are the life's doors are closing? No, it's a new beginning. But common myths about menopause and many negative misconceptions, they upset the women and they are reluctant to take steps or moving ahead in this 1/3 of our life. So our aim is to counsel you by simple, effective messages and providing help with easy, safe solutions to improve quality of life in this second adulthood. So we are going to clear your doubts and providing easy solutions. As I said, women's life is like a rose, spread fragrance all around, and for herself retains the thorns. While the reproductive cycle ends, the femininity starts fading. It leaves a piercing feeling. Are the life's doors closing? No. It's a second inning of your life, a new start, a golden opportunity to live your life, love your life, and lead a healthy life. Our aim is to counsel by simple, effective messages and providing help with easy, safe solutions to improve your quality of life. Stop wondering, remove your myths, and learn the facts. That's the motto of our webinar today. So let's share the first myth. The common myth is, क्या menopause एक बीमारी है? No, it's not a disease. The truth is that it's a natural process that happens to all women at some point in their lives. While it can cause uncomfortable symptoms, it's not a disease, but it certainly requires management in most of the women. So इस प्राकृतिक बदलाव, इस प्राकृतिक प्रक्रिया को ही मेनोपॉज कहते हैं। मेनो माने मन, पॉज माने रुकना। तो कभी जब किसी भी महिला को 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते तो हम कहते हैं उसको मेनोपॉज हो गया है।
Second myth, menopause automatically starts at age 50. No, the truth is that it ranges from age 45 to 50. But in Indian women, जो हमारे आंकड़े हैं इंडियन women के, वो ये बताते हैं कि इंडियन women की जो मेनोपॉज है वो 46.7 इयर्स ऑफ एज में होता है। लेकिन अगर 40 से पहले है तो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, और अगर 45 के बाद में है तो उसको डिलेड मेनोपॉज कहा जाता है। एंड अगर आपको फिर भी अंदाजा नहीं है कि मेनोपॉज कब होगा, तो गुड इंडिकेटर इज द एज विच योर मदर बिगन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज इट हैज हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस टू। So myth is that if you are at the age of menopause and miss few periods, you are in menopause. No, you have 12 months after the last menstrual period is menopause. But perimenopause is irregular, small, short menstrual cycle, and it may last for 4 to 5 years. And do you know who is in the charge of this change of life? Hormones. बिकॉज ये जो हॉर्मोन्स हैं आपके अंडाशय से, आपकी ओवरीज से निकलते हैं, और जब ये हॉर्मोन्स का रिसाव कम हो जाता है तो मेनोपॉज हो जाता है। और ये हर विमेन को अफेक्ट होता है, चाहे उसका नेचुरल मेनोपॉज हो, सर्जरी हुई हो, हिस्टेक्टमी हुई हो, या जल्दी मेनोपॉज हुआ हो। जो मैंने अक्सर पाया है, द थर्ड मिथ इज द वुमेन अक्सर ये कहती हैं मेनोपॉज ओनली अफेक्ट्स वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि पीरियड्स बंद हुए हैं तो इसका मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। नहीं, द ट्रूथ इज दैट इट कैन अफेक्ट फ्रॉम योर हेड टू टोज, एवरी ऑर्गन, एवरी women's body part, including bone health, cardiovascular, mood, eyes, skin, hair, and especially the weight. So it is important to take care of your overall health during and after menopause. Again, there is a myth that if I have surgical menopause, I will not be having any menopause symptoms. No, the truth is that the surgical menopause के बाद तो और भी severe symptoms होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही एकदम से सडन शटडाउन होता है हार्मोन्स का, और उसके कारण हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स ये ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर आपके और किसी कारण से भी मेनोपॉज हुआ है तो भी आपको ये सिम्टम्स होंगे, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, कैंसर की कीमोथेरेपी से है, रेडियोथेरेपी से है, या कोई जेनेटिक डिजीजेस हैं। अब जब पीरियड्स बंद हो गए हैं तो अक्सर महिलाओं को ये होता है कि विमेन in menopause can still get pregnant or not. So again, the truth is that the woman gets a period after 11 months and 29 days, she is still in perimenopause. But आपकी गर्भ धारण की संभावनाएं कम होने लगती हैं, और अगर 50 से पहले मेनोपॉज होता है तो 2 साल तक गर्भ निरोधक की जरूरत पड़ती है, और अगर मेनोपॉज 50 के बाद होता है तो 1 साल तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत होती है। पर चांसेस कम हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि पीरियड्स बंद हो गए हैं और 1 साल के बाद भी आपको 1 साल से पहले पीरियड्स इरेगुलर हैं पर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसका अपोजिट भी कुछ महिलाएं के दिमाग में मिथ है कि मेनोपॉज इज नॉट द एंड ऑफ द फर्टिलिटी। ट्रूथ इज कि कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव क्षमता कम हो गई है क्योंकि ओवरीज कम करने, लेकिन इस आधुनिक युग में जहां असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, तो स्टिल the women who have gone through the menopause, still they have uterus and can still become pregnant through assisted reproductive technologies. So clear your doubt about this also. Now, the next myth is the effect of menopause is same for every woman. The truth is कि it varies. It आपकी individual, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी डाइट पे, आपके कल्चर पे, आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, इस सब पे निर्भर करता है। कुछ महिलाओं को लगता है रिलीफ फ्रॉम पीरियड्स ऑफ दे लॉस्ट देयर फेमिनिटी एंड दे थिंक कि अब तो ओल्ड एज आ गई है। और बहुत सारी जो भी मेनोपॉज से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, मोटापा, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लशेस, अनिद्रा, डिप्रेशन, याददाश्त में कमी, स्मरण शक्ति में कमी, यानी और सेल्फ एस्टीम
खुद में विश्वास, आत्मविश्वास की कमी, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन हर वुमेन में हर चीज नहीं होती है, किसी में कुछ ज्यादा है तो किसी में कुछ महसूस ज्यादा होते हैं लक्षण। नेक्स्ट मिथ है कि देर इज नो रिलीफ फॉर हॉट फ्लशेस। अब जब हम हॉट फ्लशेस कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सिम्टम मेनोपॉज का है हॉट फ्लशेस, जिसमें कि शरीर में अचानक गर्माहट होती है, ऊपरी हिस्से में चेहरा, गर्दन, छाती की त्वचा लाल हो जाए, धड़कन तेज हो जाए, कुछ देर बाद पसीने छूट जाए, घबराहट हो। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है और 75 से 80% महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं। 20% में इट्स वेरी पेनफुल एंड बट यूजुअली 2-3 years तक रहते हैं, लेकिन कभी कभी till 10 years I have seen in my patients that they do suffer from hot flushes. बट चिंता की कोई बात नहीं है, रेमेडीज हैं, मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी, और भी ऑप्शंस हैं जो जैसे कुछ हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने की दवाइयाँ, कुछ न्यूरोलॉजिकल न्यूरो स्टिमुलेशन की दवाइयाँ, जो कि आपको हॉट फ्लशेस के जो अगर उनकी तीव्रता है, सीवियरिटी है या नींद प्रभावित हो रही है, तो इन सब में वो कारगर होते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन, जब हम ये समझ गए कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से मेनोपॉज हो रहा है, तो अब हमें एस्ट्रोजन पहुंचाना है या तो मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी की तरफ। लेकिन आजकल काफी कॉमन नाम आप लोगों ने सुना होगा, फाइटोएस्ट्रोजन। तो ये क्या होते हैं? प्लांट बेस्ड जो एस्ट्रोजन होते हैं। तो हमारी डाइट में जैसे सोया है, ये बीन्स हैं, कलरफुल सब्जियां हैं, नट्स हैं, जैसे मेडिटेरियन डाइट में अक्सर महिलाओं को सलाह देती हूँ, नट्स, बीन्स और ग्रीन्स, इन सब में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी जक्सनपाल भी नया प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि हॉट फ्लशेस को कम करेगा। तो आप अपने डॉक्टरी सलाह अनुसार किसी भी तरह की उपचार ले सकती हैं इस हॉट फ्लशेस को मैनेज करने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी है स्ट्रेस से हॉट फ्लशेस डेफिनेटली होते हैं। साथ में धूम्रपान है, मद्यपान है, चाय, कॉफी, मसालेदार खाना, इन सब के कारण भी होता है। तो उपचार यही है कि आप ठंडे वातावरण में रहें, चेहरे पर पानी छिड़कती रहें, सूती कपड़े पहने, मसालेदार खाना नहीं खाएं, चाय कॉफी कम करें, चिंता ना करें। सबसे बड़ी बात है अपना ध्यान, योग, एक्सरसाइज जरूर करें और वजन को नियंत्रित रखें। सबसे बड़ा जो मिथ है, जो रोज मैं अपनी मेनोपॉज क्लिनिक में हर दूसरी या तीसरी मेनोपॉजल फीमेल को आके कहते हुए सुनती हूँ कि मेनोपॉज इज द गेटवे ऑफ वेट गेन, कि अब मेनोपॉज आ गया है, अब तो मेरा वजन बढ़ना निश्चित ही है। यस, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, एज रिलेटेड चेंजेस, उसकी वजह से या जेनेटिक्स की वजह से वेट बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी मुख्य कारण है आपकी डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, आपकी सुस्त कार्यशैली, और अगर आपकी सुस्त कार्यशैली है और डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो आपका क्या होगा? फैट स्टोरेज होगा, स्पेशली अराउंड वेस्ट, हिप एंड थाइस। जैसा आप देख रहे हैं, पियर शेप से एप्पल शेप आपकी बॉडी हो जाती है और आगे खतरा हो जाएगा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर्स का भी। तो फैक्ट ये है कि वेट लॉस इज पॉसिबल, बट यू हैव टू रिड्यूस इट एंड इट इज रिकमेंडेड to do have healthy balanced diet, regular exercise, have adequate sleep, and manage your stress with all those things which I have already suggested to you. Now, next myth है कि menopause will lead to the constant urine leaks or difficulties. ये बहुत ही distressing problem है। महिलाएं बहुत ही शर्म महसूस करती हैं इसे बताने में कि किसी भी जोर से, खांसी से, छींक से या वजन उठाने से एकदम से यूरिन लीक कर जाता है। तो इसका कारण है कि हमारा जो ब्लैडर है, हमारा जो यूरिनरी मिएटस है, वहां पर भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं और एस्ट्रोजन की कमी के कारण ये हो जाता है। लेकिन अगर आप कीगल एक्सरसाइज करें, एस्ट्रोजन वाली क्रीम्स लगाएं, और भी मेडिकेशंस हैं, और साथ में ब्लैडर ट्रेनिंग करें और लुब्रिकेंट्स या ब्लैडर डायरी मेंटेन करें और यूरिनरी इन्फेक्शन से बचे रहें, तो ये परेशानी कम होगी या दूर भी हो सकती है।
अन्य यूरिनरी परेशानियां भी होती हैं क्योंकि आपकी वेजाइना में काफी चेंजेस हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि सूखापन आ जाता है और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, डिसयूरिया यानी पेशाब निकलने में भी परेशानी होती है। जब ये सारे योनि में चेंजेस हैं, ये वेजाइना में चेंजेस हैं, तो नेक्स्ट मिथ इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट to bust remove all your doubts related to sexual difficulties, because most of the women say that the sex drive will disappear after menopause. The truth is इसके अपोजिट भी है कि कुछ महिलाओं में हायर हो जाता है लिबिडो, बिकॉज देयर इज नो मोर फियर फॉर प्रेगनेंसी एंड दे फील फ्री। लेकिन जैसा मैंने बताया, जो आपके जननांगों में जो चेंजेस हैं, if there are changes in the genital tissues, there can be burning and irritation during sex, lack of lubrication, discomfort or pain with sex, urinary pain or urgency. But the good news is that you can treat them with vaginal lubricants, vaginal moisturizers, estrogen replacement cream, therapy वाली creams हैं, tablets हैं, rings हैं, and exercise जरूर करें. And it is also true that you might not notice any change in your sexual life, so feel comfortable with your sexuality. नेक्स्ट मिथ है कि मेनोपॉज गिव्स यू वीक बोन्स, क्योंकि इन महिलाओं में मेनोपॉज के बाद में हड्डियों और जोड़ों में मांसपेशियों में कमजोरी होती है, हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, इसी के कारण फ्रैक्चर का खतरा होता है। तो फर्स्ट 2 इयर्स में मैक्सिमम बोन लॉस होता है। तो अगर आपका मेनोपॉज अभी हुआ है या आपने अभी सर्जरी कराई है, तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश देना चाहूंगी कि इमीडिएटली आपको अपनी बोन हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस फर्स्ट 2 इयर्स में होता है। उसके बाद कम होता है, लेकिन फिर वापस रिप्लेनिश कुछ भी नहीं कर सकते। और ऑन एन एवरेज वुमेन लूज 10% ऑफ देयर बोन मास ड्यूरिंग the menopause transition, which is normal, but proper nutrition से, exercises से और bone health support से we can maintain the strong bones. वैसे तो चाइल्डहुड से ही हमें अपनी हड्डियों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने खान पान और एक्सरसाइज से। बोन रॉबर्स हैं जैसे कैफीन है, जो अल्कोहल है, उनसे बचें और रोज कम से कम 30 मिनट की सनशाइन जरूर लें, क्योंकि विटामिन डी बहुत जरूरी है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए, और कैल्शियम जरूरी है हड्डियों की डेंसिटी के लिए। तो इनडायरेक्टली विटामिन डी, कैल्शियम एंड यू हैव इंटेक शुड बी रिच एंड यू हैव टू स्टे एक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो सारी मैंने आपको शारीरिक चीजें बताई हैं अभी तक कि शारीरिक क्या क्या लक्षण प्रभाव होते हैं, what we have discussed so far, the physical changes. Now what about the mental health? So the myth is the menopause causes sadness. The truth is that menopause in and of itself does not cause depression. You may, however, experience mood swings or foggy thinking due to hormonal imbalances, which can be addressed with a variety of treatments like hormone therapy. क्योंकि अक्सर महिलाएं सर दर्द बोलती हैं, मूड में बदलाव बोलती हैं, चिड़चिड़ापन, बिना बात के रोना आना, याददाश्त में कमी होना जिसको ब्रेन फॉग भी बोलते हैं, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, पल में खुश पल में उदास, गुस्सा जल्दी आना, फ्रस्ट्रेशन होना, नेगेटिव थिंकिंग होना, ये सारी जो चीजें हैं इनको मूड स्विंग्स बोलते हैं। पर यह कोई मेंटल इलनेस नहीं है, यह कोई मनोरोग नहीं है। इसका कारण है कि हार्मोन्स के उतार चढ़ाव से जो मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें बदलाव होता है। So it's not you, it's your hormones which are causing these problems. So फील गुड टिप्स में आपको बहुत जरूरी बताना चाहूंगी कि शारीरिक के साथ हम मानसिक व्यायाम, स्ट्रेस कम करें, अच्छी नींद लें, वजन को नियंत्रित रखें, हॉबीज डेवलप करें, परिवार दोस्तों से जुड़े रहें, सुडोकी और इस तरह के चेस, इस तरह के ब्रेन टीजिंग एक्सरसाइजेस करें, और साथ में अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन एंड योगा।
ध्यान जो है वो आत्मा का प्राण है, और ध्यान और मेडिटेशन से हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ के और हमारी सारी मानसिक चिंताएं और मानसिक जो धुंधलापन है उससे हम निजात पा सकते हैं। और पौष्टिक आहार तो है ही, ब्रेन फूड्स जरूर खाएं, जैसे नट्स है, जैसे ब्रोकली है, ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान रखें। अब सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट 40 ईयर्स से मैं गायनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेनोपॉजल हेल्थ केयर का तो लास्ट 25-30 ईयर्स से मेनोपॉज क्लिनिक जो मैं रन कर रही हूँ। तो मैंने ये देखा कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या हार्मोन लेने से महिलाएं बहुत ही हिचकिचाती हैं, जबकि मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ कि हार्मोन्स के क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि जब कारण ही हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है, कारण ही जब हार्मोन्स का गिर जाना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें तो रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये डेंजरस नहीं है। हालांकि हर किसी महिला को जरूरत नहीं होती है, व्हाइल इट इज, बट मेनोपॉजल सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नो मेडिकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट इज विदाउट रिस्क, so it is critical to discuss all treatment options with a medical professional. सबसे बड़ा मिथ है, oh crap, this hormone will cause breast cancer. लेकिन मैं आपको बताऊं, studies have shown that hormone replacement therapies has not created extra cancers. The incidence is equal. It is safe, and benefits are there for relief of hot flushes, night sweats, vaginal dryness, reducing the risk of osteoporosis, and improves the quality of life overall. Although there are some risks, but you have to talk to your doctor and see whether you are an eligible candidate to receive hormone therapy or not, and your benefits are more than the risk or not. So it is very, very important to remove your myths. एंड अगर आपका मेनोपॉज जल्दी हुआ है, 40 के पहले हुआ है या 45 ईयर से भी पहले हुआ है, तो आप टिल द एज ऑफ नेचुरल मेनोपॉज आप ये हार्मोन थेरेपी ले सकती हैं, या फर्स्ट 10 ईयर्स में बहुत ही सेफ है। ये सारी स्टडीज इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी, जहां मैं पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ, और भी ब्रिटिश मेनोपॉज सोसाइटी, साउथ एशियन, एशिया पैसिफिक, सभी की गाइडलाइंस हमें ये निर्धारित किया है कि हम हार्मोन थेरेपी सेफली दे सकते हैं फर्स्ट 10 ईयर्स में या टिल 60 ईयर्स ऑफ एज। बट आइडियली द बेस्ट to use MHT for shortest amount of time at lowest dose under the guidance of menopausal specialist. गूगल यूनिवर्सिटी ने आपको बहुत कंफ्यूज कर रखा होगा, खूब सारे मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से सलाह कराएं और अपनी पूरी जांच कराएं। वेल वुमेन स्क्रीनिंग बोलते हैं, ब्रेस्ट, ब्लड प्रेशर, सारे ब्लड प्रोफाइल, BMD, अल्ट्रासाउंड, जिससे कि आपकी डॉक्टर ये निर्धारित करेगी कि आप हार्मोन थेरेपी के लिए सेफ है, नहीं है, कौन सी देनी है, कब तक देनी है, और किस मात्रा में देनी है, और किस प्रकार देनी है। राइट डोज, राइट ड्यूरेशन, राइट रूट, and right way of giving will be just calculated by calculating your individual risk and be given safely by menopause specialist. Now, next myth and the last myth is very odd, but it is the explaining. When I will explain you will be full of energy and you will feel very young and very happy after listening this, that बसंत, मेनोपॉज एक बसंत है, एक नई शुरुआत है, पुनर्जन्म और नवीनीकरण का प्रतीक है। चारों तरफ जैसे बसंत ऋतु में फिर से प्रकृति जीवंत होती है, पेड़ों में कलियां फूटती हैं, फूल खिलते हैं, इसी तरह मेनोपॉज इज द सेकेंड इनिंग ऑफ योर लाइफ। एंड like many things in life, your attitude can make a huge difference. Menopause is simply indicates a time of change, एक प्राकृतिक बदलाव का समय है, but you have to explore new possibilities for a healthy future and a new in you. Changes in the lifestyle, parenting, sexual liberty, and even freedom from menstruation are things to be celebrated. आप खुद का अवलोकन करें
और अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचाने और मेनोपॉज के उतार चढ़ाव को पार करें। हेल्दी इनिशिएटिव्स फॉर हेल्दी फ्यूचर, पौष्टिक आहार, निरंतर व्यायाम, अच्छी नींद, एडिक्शन से दूर जाएं, और कैल्शियम, विटामिन डी और वैक्सीनेशन भी। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी, जिसकी मैं पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और विगत 30 वर्षों से लगातार इस दिशा में काम कर रही है, विद द स्लोगन टू मेक यू फिट एट 50, स्ट्रॉन्ग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80. So the goal is that no women should suffer in silence, but of course we advocate holistic approach. That means live life with mind, body, soul. Mind your food, mind your body, mind your mind your sleep, mind your emotions, and mind your soul. By prayer, meditation, be positive and live without expectations. Be happy. So my final message is that because menopause is still largely misunderstood, people going through it often feel embarrassed or disempowered to bring symptoms up to their doctors or even talk about it with friends and loved ones. But menopause is a normal part of life, and there are treatments out there that provide relief. One of the most important things you can do for yourself during this time is to find a supportive, caring, and knowledgeable OBGYN or menopause specialist that you trust. Open up with her and talk about your symptoms and seek help. Ultimately, despite of all misconception, which I hope I have able to clear your doubts, feel that the life can still have fun. It should be healthy and fulfilling during menopause. Reproductive life is over, I do understand, but not the productive life. See the women across in our country, in all walks of life, they have done wonders after the menopause. Menopause had beyond a great leader, a great dancer, a great art, great writer, everything you can see here. So the midlife is like a new year and offers opportunities to reinvent, recreate, and regenerate. Thank you so much. Visit to my website, drsunilakhandelwal.com, and you can get my appointment from 6377380547. I'll see you there in my clinic to make you stay young forever, feminine forever, and fit forever. Thank you so much for your kind attention. And still, if you have myths or doubts, now the floor is all yours. Please come up with your questions. I'm here to solve your more queries, give you more answers, and more satisfied, way to navigate through menopause turbulence. Thank you. Thank you all. Now the floor is open. As ma'am has just now said, we can have some questions. Already we have a few thank you messages in the chat. We have Mrs. Usha Banerjee. She's saying excellent session. Thank you so much for inviting, and also regards to Dr. Khandelwal. Yes, so you can raise your hands in case somebody wants to speak. We can have your audio enabled. We have another thank you, ma'am, from Pinky Chauhan. Good evening, ma'am. I wanted to ask, as we started this presentation and this meeting with a statement that this is not a disease. I will pose my question in Hindi so that other people can also understand. Sure. तो क्योंकि ये एक डिजीज नहीं है, तो हमारे माइंडसेट और हमारे जो रूट्स में ये चीज़ है कि जो सिम्टम्स हैं इसके, फॉर एग्जांपल हॉट फ्लैशेस या जो भी इरिटेशन, एंजाइटी जो भी है इसके सिम्टम्स हमारे, वो हमको समझाया जाता है जब हमारे मेंसेस होते हैं तब भी कि ये तो होंगे ही, हॉर्मोन्स का चेंज है तो होएगा ही. तो व्हाट इज द साइन एंड व्हाट इज द इंडिकेशन कि अब हमें डॉक्टर को रेकमेंड करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. वेरी कॉमन क्वेश्चन है.
तो जैसा मैंने आपको बताया कि हार्मोन का बदलाव तो स्त्रियों में होता ही है, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का टाइम हो, चाहे मेनोपॉज हो, लेकिन वो एक टेम्परेरी होता है और फिर वो फेज जब निकल जाती है तो इट्स फाइन। लेकिन मेनोपॉज एक ऐसा समय है जहां पर बिल्कुल शटडाउन हो जाता है हॉर्मोन्स का। जो हॉर्मोन्स अब तक हमारे शरीर की रख रखाव कर रहे थे, हमारे सारे अंगों की, उनकी जो अवस्था है मेनोपॉज एस्ट्रोजन हार्मोन के अभाव में, वो काफी चेंज हो जाता है। और सबसे ज्यादा असर, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, या वेजाइनल ड्राइनेस है, सेक्सुअल डिफिकल्टीज हैं, या मेंटल ब्रेन फॉग्स, जैसे मैंने बोला, मूड इरिटेबिलिटी है, जो आपकी दैनिक जीवन को प्रभावित जब करने लग जाती है, इसका मतलब है डेफिनेटली यू नीड एन आंसर, यू हैव टू मैनेज इट। लेकिन कुछ ऐसी ये तो हो गई चीजें जो आपको समझ आ रही हैं, जो आप लेके आती हैं हमारे पास, लेकिन मैं उन चीजों के लिए और ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि बोन लॉस, आपको पता ही नहीं चल रहा है कितनी पेशेंट्स होती है, सर्जिकल मेनोपॉज हो गया, मास्टेक्टमी हो गई, 10 साल बाद आ रही है, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं लिया, ना हार्मोन थेरेपी, ना प्रॉपर कैल्शियम, एंड उनकी हड्डियां मोर देन 50-60% घिस चुकी होती हैं, और इतने 2-2, 3-3 फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो अगर हम समय रहते हमारे शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण के लिए डॉक्टर के पास जाएं और सही प्रबंधन करवाएं, या फिर प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज क्योर बेटर देन क्योर का जो संदेश है, वो मेनोपॉज के दौरान सबसे ज्यादा सार्थक होता है। आप प्रिवेंट कर सकते हो ऑस्टियोपोरोसिस को, आप विजाइनल एट्रोफी को प्रिवेंट कर सकते हो, आप मेंटल प्रॉब्लम्स, आगे चलने वाली एल्जाइमर, डिमेंशिया, उनको प्रिवेंट कर सकते हो, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो। तो अगर आप प्रिवेंशन के लिए है तभी भी आपको जाना चाहिए। आपको पूरा मेनोपॉज मैनेजमेंट के लिए जो भी आपकी, चाहे डाइट है, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे आपके टॉनिक्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, या हार्मोन थेरेपी है, जैसा आपकी जांच के बाद पूरी जांच, संपूर्ण स्वास्थ्य जांच, हेल्थ स्क्रीन, जिसको मैं वेल वुमेन स्क्रीन बोलती हूँ, बिकॉज दीज वुमेन आर नॉट इल, as I said, it's not a disease, but for providing best solution, safe solution, and effective solution, we have to have complete women health screening and decide individualized base कि fit therapy नहीं है, one size doesn't fit all। हर महिला की पूरी जांच करके उसका रिस्क असेसमेंट, उसका ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क असेसमेंट, उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क असेसमेंट, उसकी हृदयाघात की संभावनाओं का रिस्क असेसमेंट, every risk assessment has to be done, and then see whether she is a good candidate for hormone therapy. The benefits are more than the risk, and she needs supplementations, she needs proper dietary advices, and also exercises. I think आपको भाविका, आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपको क्यों जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब जाना चाहिए। यस मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ, ये उषा जी का क्वेश्चन है कि मेनोपॉज के बाद हमें जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, मसल्स पेन्स हो रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, मसल और जॉइंट्स जो होते हैं वो आपके स्केलेटन के को बनाते हैं बोन्स के साथ। अगर आपका मोटापा है, आपके मसल में भी फैट जमा हो गया, आपके जॉइंट, आपके बोन्स में भी फैट जमा हो गया, आपके चर्बी ज्यादा है, तो आपका बोन मास तो कम हो गया और फैटी फैट है, तो आपकी हड्डियां लचीली हो जाती हैं, आपकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, और इस कारण से आपके जॉइंट पेन्स होते हैं। दूसरा है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। यहाँ में एक बहुत ही कॉमन जो मिथ है और जो भ्रांति है या समस्या है, कि अक्सर महिलाएं कहती है, मैडम हम तो रेगुलरली कैल्शियम ले रहे हैं, पिछले इतने सालों से रेगुलरली विटामिन डी ले रहे हैं, हमारी तो कमी हो ही नहीं सकती, फिर भी हमारी बोन क्यों ऐसी हो गई। तो सबसे पहले तो ये निश्चित करिए कि आप विटामिन डी ले कब रही हैं,
क्योंकि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट जरूरी है। तो आप पूरे वीक आपको कुछ ज्यादा फैट खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप विटामिन डी ले रही हैं उस समय उस मील में 1 चम्मच घी या कुछ भी फैट जरूर लीजिए, क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, और अगर वो आपने फैट उस खाने में नहीं लिया तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम नहीं हुआ तो हड्डियां वीक हो जाएंगी। तो ये मैं यहाँ पर इस आज की इस वेबिनार के माध्यम से आई वांट टू कन्वे एवरीवन, be cautious when you are taking, what you are taking, what amount you are taking, and exercises बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सार्कोपीनिया ऐसी चीज है, सार्कोपीनिया मतलब मसल लॉस हो गया, ऑस्टियोपीनिया मतलब बोन लॉस हो गया और फैट ज्यादा हो गया। तो ये सब मसल और जॉइंट पेन्स के कारण होते हैं। आई होप उषा जी आपको अपना आंसर मिल गया है। Usha, would you like to speak up? Yeah, thank you very much. It is quite clear now. Thank you for the advice. I am quite happy. Anyone else who has a question before we wind up? I think the session has been quite enlightening. काफी सारी myths वैसे भी resolve हो ही गई हैं सबकी, and it has been a pleasure, ma'am, having you with us. Thank you so very much for clearing all the misconceptions around menopause. And we also thank the guests who have been with us today for this important initiative. Please continue to be with us. Jagsonpal Pharmaceuticals is one of the leading pharmaceutical companies in women's health. And this initiative forms a part of our commitment to improving women's health across all life stages, from adolescence till menopause. Currently, we are focusing on menopause. MySakhi.in is a website which is an extension of our ongoing CSR initiatives for promoting women's health and hygiene. Jagsonpal has already made a positive impact by building sanitation facilities at girls' schools, as well as raising awareness about menstrual hygiene. Now, the website MySakhi.in shall be focusing on menopause with public awareness programs which are led by medical experts to educate and for raising awareness about menopause management. ये सेशंस जो होंगे ये लाइव इंटरैक्टिव वर्चुअल सेशंस रहेंगे, और इनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे MySakhi.in वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी।